Well, hello everyone. Well, my name is Arima Chaturvedi and I am your social studies teacher. I'm your social science educator at this Unacademy platform, which is now the India's largest growing educational platform. And we have specifically launched and designed this platform for you guys, for all the seventh graders. And you would be very happy to know that now your sisters, brothers, and all your friends can now also study from our Unacademy app, because we have launched the classes or launched the channels for the classes of 6th and 8th as well. So you can visit our portal, you can visit the site of Unacademy, you can download the app, and importantly you can see all the teachers, all the videos, and see how the teachers are excited to interact with you, to tell you what they already know. So moving further, just hold on for a second. Have you subscribed on Academy? No? So pause the video, hit the subscribe button, share the video, and like the video, because we are in the need of your love and support thoroughly, because we are new here, so we obviously need your love and support. So make sure that you like the video, subscribe the Unacademy channel, and hit the bell icon. Why? Because you don't want to miss any update or any notification or any video from Unacademy. Yes, yes, you have to learn, so you have to be very active on this Unacademy channel. So moving further with just a quick introduction of myself. My name is Arima Chaturvedi. I'm your social science teacher. As I've already told you, I was a student of history major, and I've already taught CBSE and ICSE students in schools and coaching, and I've also mentored some of those students for various examinations. So that's it. Yeah. Well, you already know me by now, and if you think that social science is a boring subject, then no, you're clearly mistaken. I am here, and I will definitely grow the interest in you for all the social sciences subject. Yes, so be here with me. Do what as I do as I say. See the video all till the end, and you will see the results definitely. So the first topic today that we are covering in our first video is environment. Okay, so you might have heard like these sentences that हमारे घर का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, नहीं हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट तो बहुत अच्छा है, और हमारी लोकेलिटी का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है. तो ये जो एनवायरनमेंट है ये कहाँ से आया? हर चीज कहीं ना कहीं से तो आती है ना. तो ये एनवायरनमेंट आया एक फ्रेंच वर्ड से. फ्रेंच लैंग्वेज है, आपको पता ही होगा. तो फ्रेंच वर्ड से एक वर्ड आया दैट इज एनवायरनो. इसका मतलब होता है सराउंडिंग्स या नेबरहुड. तो बेसिकली एनवायरनर का मतलब जब सराउंडिंग होता है, तो एनवायरनमेंट का मतलब भी सराउंडिंग हो गया. तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं? Anything that surrounds us is environment. Yes, you heard me right. So anything that surrounds us is environment. Example से पढ़ते हैं. जैसे आप सपोज आप आज स्कूल नहीं गए और आपकी मम्मी ने आपको डांट के बिठा दिया कि भाई अब तो तेरे को पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है. तो अब आप क्या करोगे? आप अपने रूम में हो और आप सोच रहे हो और you will look around your room. Yes, you will do that. Yes, you will do that. तो अब आपने देखा कि आपके रूम के साइड में एक सुंदर सा एक्वेरियम है जिसमें बहुत छोटी छोटी सी क्यूट लिटिल फिशेस हैं गोल्डन कलर की, जो कि आपके फादर ने आपको गिफ्ट करी थी. तब गिफ्ट करी थी जब आप फर्स्ट आए थे क्लास में. और फर्स्ट आने के लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, और पढ़ाई के लिए अनअकैडमी चैनल इंपॉर्टेंट है. यस. तो अब हम क्या बता रहे थे? ये बता रहे थे कि आपने एक्वेरियम देखा. एक्वेरियम के बाद आपके रूम में बहुत सारी चीजें थी, जैसे चेयर है, डेस्क है, लैपटॉप है, टीवी है, एंड मेनी अदर थिंग्स, मेनी सर्टेन थिंग्स. यस, यस. तो अब आपने क्या देखा? जो भी चीजें आपके आसपास थी ना, वो सारी मिलके आपका एनवायरनमेंट बना रही है. ठीक है, जितनी भी चीजें आपके पास में है वो सारी चीजें मिलके आपका एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हैं. अब anything that surrounds us is environment. उसमें लिखा था the place, people, things and nature that surround any living organism is environment. यानी कि वहां की जगह, लोग, चीजें और नेचर सब मिलके क्या बनाती हैं? सब मिलके एनवायरनमेंट बनाती हैं. ठीक है. अब ये जो एनवायरनमेंट है उसके लिए हमें एक और चीज पता चली, दैट वाज बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. कैसे?
ऐसे कि अभी मैंने आपको बोला ना कि आप घर में बैठे हो, हाँ, अब आपका एक दोस्त है जो कि स्कूल में चला गया, स्कूल में चला नहीं गया, उसने छुट्टी नहीं ली स्कूल से, इसलिए वो स्कूल चला गया, हाँ, तो वो स्कूल में बैठा है। अब आपने ये सोचा कि मेरे सराउंडिंग्स में तो ये सारी चीजें, एक्वेरियम है, बेड है, टीवी है, सब कुछ चीजें, और मेरे फ्रेंड के सराउंडिंग्स में क्या होगा, मेरे फ्रेंड के सराउंडिंग्स में टीचर होंगी, एक बोर्ड होगा, चेयर्स होंगी, डेस्क होंगे, और क्या होगा, बुक्स होंगी, कॉपीज होंगे, और क्लासमेट्स होंगे, आप दोनों के क्लासमेट्स होंगे। तो अब आपने ये देखा कि उसके एनवायरमेंट और आपके एनवायरमेंट में कितना डिफरेंस है, ठीक है, देखा ना, उसकी सराउंडिंग और आपकी सराउंडिंग में कितना डिफरेंस है। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके एनवायरमेंट में, और सपोज आप एक ट्री हो और आप केरला के बहुत ही सुंदर ग्रीन एरियाज में एक ट्री हो और वहां पे रहते हो, ठीक है, तो अब आपके लिए क्या क्या, आपकी सराउंडिंग्स क्या क्या होंगी, आपकी सराउंडिंग्स में एनिमल्स होंगे, सनलाइट होगी, एयर होगी, और अदर प्लांट्स होंगे, लैंड होगा, और छोटे छोटे इंसेक्ट्स और बर्ड्स होंगे, ठीक है ना। तो अब आपने ये भी देखा कि सबके एनवायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट था, आपका एनवायरमेंट कुछ और था, आपके बेस्ट फ्रेंड का एनवायरमेंट कुछ और था, और आप जब एक ट्री थे तो आपका एनवायरमेंट कुछ और था, है ना। तो यानी कि सारे लिविंग बींग्स का एनवायरमेंट कुछ और हो सकता है। इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि सबका एनवायरमेंट अलग हो। जैसे सपोज आप मेरे रूम में हो, तो मेरा और आपका एनवायरमेंट एक ही होगा, बट द थिंग इज कि मेरे एनवायरमेंट में आप होगे और आपके एनवायरमेंट में मैं होंगी, ठीक है। तो अब हमें क्या पता चला कि जो एनवायरमेंट है वो सबका अलग अलग हो सकता है। और अभी मैंने एक और चीज बोली थी कि एनवायरमेंट क्या करता है, एनवायरमेंट लाइफ सपोर्ट करता है। कैसे करता है, जब आप ट्री थे तब आपने देखा था कि आपको ट्री के आसपास क्या क्या चीजें थी, एनिमल्स, प्लांट्स, ये वो सब चीजें, है ना। तो अब ट्री को असेंशियल चीजें क्या होती है, ट्री को जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ट्री को जिंदा रहने के लिए एयर इंपॉर्टेंट होती है, वाटर इंपॉर्टेंट होता है, लैंड होता है, और सनलाइट इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब ऐसे ही जब आप ह्यूमन बीइंग थे क्या, अभी भी हो, तो जब आप ह्यूमन बीइंग हो तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको फूड इंपॉर्टेंट है, वाटर इंपॉर्टेंट है, लैंड इंपॉर्टेंट है, और एयर इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें ये पता चला कि आपके लिए एसेंशियल चीजें कुछ और हैं और एक ट्री के लिए एसेंशियल चीजें कुछ और हैं। और ये दोनों एसेंशियल चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं, ये हमें मिलती है हमारे एनवायरमेंट से। आपको आपके ही एनवायरमेंट से वाटर मिलता है, लैंड मिलता है, आपको कहीं और तो नहीं जाना पड़ता ना वाटर, लैंड, एयर और फूड लेने के लिए, आपको सब कुछ आपके एनवायरमेंट में मिलता है। और इसीलिए क्योंकि वो सब चीजें असेंशियल्स है, तो हमारा जो एनवायरमेंट है वो हमें असेंशियल्स प्रोवाइड करता है, इसलिए एनवायरमेंट जो है वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी होता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये सारी चीजें क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो इस पिक्चर में द गर्ल इज लुकिंग आउट ऑफ हर विंडो and you can see all the buildings, you can see the green lush trees, oh you can see also butterfly there are flowers, and there are the birds that are flying, and the river and the sun and some sand by the side of it. ओके, सो व्हाट इज दिस, जो भी चीजें वो देख रहे हैं, ये सारी चीजें जितनी अभी मैंने लिस्ट करी, ये सब क्या है, ये सब उसका एनवायरमेंट है, एग्जैक्टली ये सब उसका एनवायरमेंट है। तो वी नो बाय नाउ कि हम जो भी चीजें देख सकते हैं अपने आसपास, या जो भी चीजें हमारे आसपास होती हैं, वो सब हमारे एनवायरमेंट में इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। Now, the components of environment. What are the components of environment? Environment basically तीन parts में divided होता है, natural, human made and human. नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जहाँ के जितने एलिमेंट्स होते हैं वो हमें नेचर प्रोवाइड करता है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट आर प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर, वी डू नॉट हैव अ हैंड इन इट, ठीक है, अंडरस्टूड, आई थिंक सो। तो नेचुरल एनवायरनमेंट हमें समझ में आ गया। अब ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट होता है जो कि ह्यूमंस बनाते हैं, यानी कि हम लोग बनाते हैं। और ह्यूमन एनवायरनमेंट, अब ह्यूमन एनवायरनमेंट ऐसा ही लग रहा है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट की जैसा, पर नहीं, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट आर टू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, यस। अब जैसे कि आप रूम में थे, आपने रूम में देखा कि आपके साइड में एक्वेरियम था, एक्वेरियम में फिशेस थे, और सपोज आपके रूम में एक छोटा सा प्लांट भी है, मनी प्लांट है आपके रूम में, बहुत ही सुंदर सा, ठीक है। तो अब वो जो मनी प्लांट है एंड दैट फिशेस इन द एक्वेरियम आर द लिविंग बींग्स, यस, और वो दोनों एनवायरनमेंट हमें
कैसे प्रोवाइड करता है, हमें नेचर प्रोवाइड करता है ये दोनों चीजें। तो बेसिकली जो भी चीजें हमें नेचर प्रोवाइड करता है वो क्या होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट। तो आपके रूम में नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें थी, आपके रूम में एनवायरनमेंट में फिशेस थी और एक सुंदर सा मनी प्लांट था। यस, नाउ आपके रूम में ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट की क्या क्या चीजें थी। आपके रूम में ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट की चीजें हैं, चेयर है, डेस्क है जो कि ह्यूमंस ने बनाई है। क्या हमें चेयर पेड़ पे लटक के मिलती है, नहीं, हम उसे बनाते हैं फ्रॉम द वुड्स। और वुड्स कहाँ से मिलती है, वुड्स हमें मिलती है नेचर से, बाय द ट्रीज। और ट्रीज कहाँ से आ गए, नेचर से। तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जो होता है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी उसके एलिमेंट्स हम खुद बनाते हैं, और नेचुरल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स हमें नेचर प्रोवाइड करता है। और दो जब हम ह्यूमन एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो ह्यूमन एनवायरनमेंट इज व्हाट, human environment are basically the relations or the modifications that we do with our environment। अब जैसे कि आपके मम्मी पापा है रूम में, ठीक है, तो अब वो तो दो ह्यूमंस हैं, तो क्या वो नेचुरल एनवायरनमेंट के हैं या वो ह्यूमन एनवायरनमेंट के हैं, वो नेचुरल एनवायरनमेंट के हैं। कैसे, क्योंकि लिविंग बींग्स तो नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं। यस, तो वो जो लिविंग बींग्स नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं वो लिविंग बींग्स क्या थे, नेचुरल एनवायरनमेंट के पार्ट थे। और हमने क्या बोला, ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है, तो ह्यूमन एनवायरनमेंट ये होता है कि हमारा उन ह्यूमन बींग से रिश्ता क्या है, हमारा उन ह्यूमन बींग से रिलेशन क्या है। जैसे जो दो ह्यूमन बींग्स आए थे वो आपके मदर और फादर थे, तो व्हाट रिलेशन यू हैव विद देम, यू हैव अ रिलेशन ऑफ मदर एंड फादर विद देम रिस्पेक्टिवली। यस, तो वो जो रिलेशन है जो हमने एनवायरनमेंट से मॉडिफाई करके बनाया या कैसे भी हमने एनवायरनमेंट के साथ में बनाया मिलके, उस रिलेशन को हम ह्यूमन एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, करेक्ट, आगे समझ में, आई थिंक सो आ गया। मूविंग फर्दर, सबसे पहले टॉपिक ये देखो, अब इस फोटो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस पिक्चर में कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। नेचुरल क्या है, नेचुरल है वाटर, एयर, लैंड, लिविंग थिंग्स। एंड ह्यूमन मेड है, ह्यूमन मेड है बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस, रोड्स, इंडस्ट्रीज एंड मॉन्यूमेंट्स। ये सब कौन बनाता है, ये सब ह्यूमंस बनाते हैं। और नेचुरल वाले क्या, वाटर, एयर, लैंड, लिविंग थिंग्स। आप बना सकते हो, नहीं, कोई नहीं बना सकता। ये सब क्या है, ये सब है जो नेचर हमें प्रोवाइड करता है। ऐसे ह्यूमन बींग्स का देखो आप, इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी, रिलीजन, एजुकेशनल, ये सब क्या है, ये सब ह्यूमन के मॉडिफिकेशंस हैं। इंडिविजुअल में क्या, किसी का कोई ना कोई रिलेशन तो होगा ह्यूमंस के साथ, फैमिली में आपके रिलेशंस होते हैं, कम्युनिटी आपने बनाई है सारे ह्यूमन बींग्स को मिला के, आपकी वजह से, ह्यूमंस की वजह से कम्युनिटी बनी है। तो ये क्या है, ये है ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, next comes the natural environment. Now what is natural environment, we already know that। अब natural environment में आता क्या क्या है, natural environment में land आता है, water आता है, plants आते हैं, animals आता है और air आती है। अब ये तो हमें पहले ही पता था, हमने पिक्चर देखे सब कुछ समझ लिया था। यू आर वेरी स्मार्ट, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, तो अब नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट कंसिस्ट करता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर इज लैंड, हाइड्रोस्फीयर इज वाटर, एटमॉस्फेयर इज एयर एंड बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर इन चीजों से मिल के बना है, इन तीनों स्फीयर से मिलके बायोस्फीयर बना है। आई थिंक आपने ये ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, बट इफ यू डोंट नो अबाउट दीज स्फीयर्स वील read it in the further video। yes, तो अब हमें ये पता है कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है वो लिथोस्फीयर से बना होता है, हाइड्रोस्फीयर से बना होता है, एटमॉस्फेयर से बना होता है, और ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती हैं, बायोस्फीयर। ठीक है, अब नेचुरल एनवायरनमेंट जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक एलिमेंट्स का। अब ये बायोटिक एलिमेंट्स और एबायोटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो बायोटिक एलिमेंट्स और एबायोटिक एलिमेंट्स वो होते हैं, सो यू कैन सी इन द picture that is bottom in the bottom, the abiotic elements are those elements which examples इसमें दिए हुए हैं, जैसे sun है, water है, air है, land है। so these are basically the elements of abiotic of natural environment, abiotic elements of natural environment। ये क्या है, ये non living things है, non living things of natural environment जो कि हमें nature provide करता है, ये सारे होते हैं abiotic elements। और ऐसे ही बायोटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, बायोटिक एलिमेंट्स लिविंग एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमें नेचर प्रोवाइड करता है। क्या क्या, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड व्हाट एल्स, डू सर्च फॉर इट, डू थिंक अबाउट इट कि बायोटिक एलिमेंट्स में और हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही हमें पता चलता है कि बायोस्फीयर कोई चीज है। अब बायोस्फीयर क्या है? वेल, बायोस्फीयर अभी मैंने बताया था आपको कि एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर को तीनों को मिला के जो चीज हमारे पास आती है वो क्या है? वो बायोस्फीयर है। तो तीन स्फीयर्स को मिला के हमें स्पेस जो मिला उसे बायोस्फीयर कहते हैं। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि एक फिश है, ठीक है, सपोज एक फिश है जो कि पानी में है। अब वो पॉन्ड में है, उसको क्या क्या चाहिए? फिश को एयर भी चाहिए और उसको वाटर भी चाहिए। तो वो उन दोनों चीजों को कैसे निकालेगी एक ही जगह से? पर वो रहती तो हाइड्रोस्फीयर में है। पर हाइड्रोस्फीयर में भी एटमॉस्फेयर का एक छोटा सा पार्ट होता है। और इसी जो हम तीनों, मैंने बताया भी आपको, जो तीनों चीजें जहाँ पे एक साथ रहती है उसे बायोस्फीयर कहते हैं। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जो फिश है उसे पानी भी चाहिए और उसे एयर भी चाहिए। तो वो दोनों चीजें उसे कहाँ से मिलेंगी? वो दोनों चीजें उसे बायोस्फीयर से मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? क्योंकि एयर और यानी एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यानी आपस में साथ में मिलजुल कर फ्रेंडशिप से रहते हैं। इसीलिए वो जो फिश है वो रह पाती है, यानी कि इट कैन लिव further with all its requirements, with all its essentials, जो कि क्या है? water and air. तो biosphere is a zone of earth where all the other three spheres interact with each other to support life. अब यहाँ पे हमने ये तो देखा कि हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर ने मिल के फ्रेंडशिप दिखा के जो फिश थी उसे जिंदा रखा ना, यानी कि उसने लाइफ को सपोर्ट किया। तो वो यही कह रहा है कि बायोस्फीयर जो है, बायोस्फीयर इज अ जोन ऑफ अर्थ वेयर ऑल द अदर स्फीयर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। सब एक साथ इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं। एक और चीज, पिक्चर में देखो आप, इसमें क्या लिखा हुआ है? इंक्लूड्स ऑल द लाइफ एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द अर्थ विच कंटेन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स, हाँ क्यों नहीं? अगर कोई लाइफ सपोर्ट कर रहा है, कोई भी एलिमेंट एनवायरमेंट का लाइफ सपोर्ट कर रहा है, देन दैट इज अ लिविंग थिंग, है ना? तो वो जहां पर भी कोई भी लिविंग थिंग होती है वो वहां पे बायोस्फीयर होता है। और हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जहां पर बायोस्फीयर होता है वहीं पर लिविंग थिंग्स होती हैं, वहीं पर लोग जिंदा रह सकते हैं। अगर हमारे लिए तीनों में से एक भी चीज मिसिंग है तो हम जिंदा नहीं रह सकते। हम एयर के बिना जिंदा नहीं रह सकते, हम लैंड के बिना जिंदा नहीं रह सकते और हम पानी के बिना भी जिंदा नहीं रह सकते। तो जहां पर बायोस्फीयर है वहीं पे ही लाइफ है, यानी बायोस्फीयर सपोर्ट्स लाइफ। Yes, so biosphere is a space or a zone or an area of the earth जहां पे तीनों स्पेयर्स मिलते हैं और लाइफ को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, that is clear? Yes, I think so. Moving further, we have this topic that is lithosphere. अभी मैंने आपको बोला था ना कि कोई बात नहीं मैं पढ़ाऊंगी आगे, आ गया। तो lithosphere क्या होता है? Lithosphere बेसिकली लैंड है। अब ये लैंड क्या था? लैंड इज द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो ये जहाँ पे जमीन जिस पे मैं बैठी हूँ या मैं खड़ी हूँ या आप वॉक कर रहे हो, ये सब क्या है? ये लिथोस्फीयर का एक पार्ट है। और लिथोस्फीयर जो ऊपर की टॉप मोस्ट लेयर होती है ना अर्थ की, वो बहुत हार्ड होती है। अब आप ऐसे उंगली डालोगे ना तो आपकी उंगली में दर्द हो जाएगा, लग जाएगी आपको उंगली में। ऐसा नहीं है कि आप उंगली डालोगे तो अर्थ पे गड्ढा हो जाए, होता है कभी? नहीं होता। I'm not talking about soil, I'm talking about the hard core of the earth. Yes? So, a lithosphere is basically made up of rocks and minerals. और ये किससे बना होता है? रॉक्स और मिनरल से बना होता है और इसके ऊपर एक लेयर होती है सॉइल की, जिसे हम देखते हैं। सॉइल की लेयर, वही मैं कह रही थी ना, सॉइल में नहीं उंगली करनी, हमें उंगली किस में डालनी थी? हमें उंगली लगानी थी हार्ड लेयर ऑफ दी अर्थ में। ठीक है, तो अब हमें लिथोस्फीयर पता चल गया। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर इज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। और ये बना किससे होता है? ये बना होता है रॉक से, मिनरल से, और ऊपर की लेयर किससे कवर्ड होती है? सॉइल से। अब जो लिथोस्फीयर होता है बेसिकली हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करता है, जैसे कि, अच्छा अब एक बात बताओ, आपको खाने के लिए चीजें चाहिए, आपको चावल चाहिए, दाल चाहिए, यू नीड राइस एंड पल्सेस टू लिव ऑन। यस, तो अब ये राइस और पल्सेस आए कहाँ से? ये क्रॉप्स, ये जो हमारे फार्मर्स हैं उन्होंने ग्रो किए। और उन्होंने कहाँ ग्रो किए? उन्होंने लैंड पर ग्रो किए। और आपका घर कहाँ बना है? आपका घर भी लैंड पर बना हुआ है। तो ये जितने भी लैंड वाले एरियाज हैं जिन पर हम एग्रीकल्चर करते हैं, यानी कि क्रॉप्स ग्रो करते हैं या फिर अपने घर बनाते हैं, ये हमें कौन प्रोवाइड करता है? ये हमें लिथोस्फीयर प्रोवाइड करता है। यानी कि लिथोस्फीयर एक छोटा हमें अपना एक पोर्शन दे रहा है फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट।
अदर देन दैट हमें फॉरेस्ट कहाँ होते हैं? क्या आपने कभी देखा है पेड़ों को ऐसे हवा में उड़ते हुए? नहीं ना। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? उसके लिए लैंड इंपॉर्टेंट है टू सीप इन द रूट्स ऑफ इटसेल्फ। यस, तो वो जो फॉरेस्ट है वो हमें कहाँ दिखते हैं? हमें लिथोस्फीयर पे दिखते हैं। तो लिथोस्फीयर हमें फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर और ह्यूमन सेटलमेंट के लिए लैंड भी प्रोवाइड करता है। नाउ द थिंग कम्स कि लिथोस्फीयर के लैंड फॉर्म्स क्या होते हैं? लैंड फॉर्म्स बेसिकली क्या होता है कि जो लैंड है वो किस किस टाइप से आपको दिख रहा है, अलग अलग टाइप से। अब जैसे कोई छोटा है, कोई बड़ा है, मोटा है, पतला है, ये सब क्या है? लैंड फॉर्म्स हैं लिथोस्फीयर के। कैसे? प्लेटोज, जैसे अगर आप सदर्न कोस्ट या ईस्टर्न कोस्ट में चले जाओगे तो आपको बहुत सुंदर सुंदर प्लेटोज दिखेंगे, है ना? तो वो है प्लेटोज। फिर है प्लेन एरिया। अगर आप इंडिया के सेंटर में आ जाओगे तो आपको प्लेन्स दिखेंगे, सब कुछ वहां पे आपको कुछ भी हिली एजी कुछ नहीं दिखेगा, है ना? फिर आते हैं माउंटेन्स। अगर आप नॉर्दर्न साइड चले जाओगे इंडिया के तो आपको बहुत सुंदर सुंदर माउंटेन्स दिखेंगे। एंड देन कम्स दी वैली। वैली क्या होती है? वैली आर द वैली इज द स्पेस बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स। तो वो हमारी वैली है। अब हमें ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये सारी चीजें हमें लिथोस्फीयर दे रहा है। तो ये लिथोस्फीयर के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लैंड फॉर्म्स हैं। ओके, आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट राइट। The next point is atmosphere. Well, atmosphere is the air. अब आप देखो मेरे आसपास भी एटमॉस्फेयर है ना? तभी तो मैं सांस ले रही हूँ, है। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर एक पतली सी लेयर होती है एयर की। ठीक है, किसकी लेयर होती है? एयर की, जो कि अर्थ को सराउंड, जैसे ये अर्थ है, इसको सराउंड करके यानी उसको कवर करके एक लेयर रखी हुई है हमने एयर की। काफी राइमिंग है ना? हाँ। तो और ये जो अर्थ की लेयर है, ये किसकी लेयर थी? ये एयर की लेयर थी जिसने अर्थ को सराउंड कर लिया था। अब ये जो एयर है, अब आप एक बात बताओ, अगर हम किसी को पकड़ के नहीं रखेंगे तो वो चीज तो उड़ जाती है। एंड स्पेसिफिकली एयर तो मूव करती रहती है, आपको तो पता ही होगी ये बात, है ना? तो अब ये एक ही जगह पे या अर्थ के अंदर ही कैसे रखे है? इसको तो अर्थ के बाहर चला जाना चाहिए मूव करते करते। ऐसा हो सकता है ना? पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अर्थ में एक फोर्स होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि अपने अंदर सब कुछ खींच के रखती है। वी आर स्टैंडिंग सिटिंग ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इफ यू नो दैट, आई थिंक यू गाइज नो दैट, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड ग्रेविटेशनल फोर्स इन science. And if you don't know it, what gravitational force is, do visit our channel, check the videos of science and go there and see what gravitational force is. So the next thing is it protects us from the harmful sun rays and heat of the sun. अब आप एक बात बताओ, ये तो हमें पता चलेगा कि एटमॉस्फेयर जो है उसको होल्ड करके रखता है अर्थ, किसकी वजह से? अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब ऐसे ही जो हमारी सन रेज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना हमारे लिए, होती हैं, बट उतनी ही हार्मफुल भी होती हैं। जब हम बहुत ज्यादा देर गर्मी में रहते हैं तो क्या होता है? हमें चक्कर आने लगते हैं, डिहाइड्रेशन होने लगता है और हम बीमार पड़ने लग जाते हैं। तो जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करता है? वो जो सन रेजेस आती हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें सन रेज के हार्मफुल इफेक्ट से और उसकी ज्यादा हीट से बचाता है, हमें उसे प्रोटेक्ट करता है। अब ऐसे ही एटमॉस्फेयर हमें देखो प्रोटेक्ट भी करता है, एटमॉस्फेयर हमें हवा भी देता है और एटमॉस्फेयर की हवा से ही हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं। तो एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे स्पेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Now the thing comes कि atmosphere consists of water vapors, gases and dust. तो water vapors, gases and dust. Dust क्या होती है? एक एग्जांपल देती हूँ। अपनी रूम की लाइट्स ऑफ करना और विंडो को थोड़ा सा खोल देना, तो बाहर से जो सनलाइट की रे आएगी ना उसको देखना आप लोग, और उस रे में क्या होगा? उस रे में आपको छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स दिखेंगे। और वो डस्ट पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो डस्ट पार्टिकल्स जो थे वही उसी डस्ट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम ये कर सकते हैं उसमें कि अगर जैसे ही हमने अपनी विंडो खोली, हमने सामने से लाइट आते हुए देखा, तो हम ध्यान देंगे तो उस लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल्स एंड दैट पार्टिकल्स आर डस्ट। ऐसे ही गैसेस तो हमें दिखती नहीं है बट होती तो है। ऑक्सीजन आप कैसे इनटेक कर रहे हो? ऑक्सीजन आप इनटेक कर रहे हो एटमॉस्फेयर से, है ना? तो जब आप ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हो एटमॉस्फेयर से, तो दैट मीन्स कि एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट है। नेक्स्ट कम वाटर वेपर्स। अब वाटर पानी तो नहीं है एटमॉस्फेयर में, है क्या? क्या मैं तुम लोग को गीली दिख रही हूँ?
नहीं तो मैं बिल्कुल गीली नहीं दिख रही होंगी तुम लोग को। तो फिर इसका मतलब क्या है कि वाटर वेपर्स कैसे है एटमॉस्फेयर में? इसका मतलब ये है कि जो एटमॉस्फेयर में वाटर होता है ना, वो गैसीय स्टेट में होता है, यानी कि वेपर्स की फॉर्म में होता है, गैस की फॉर्म में होता है, अपनी नॉर्मल फॉर्म यानी कि लिक्विड फॉर्म में नहीं होता। और जो एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स होते हैं उसकी वजह से ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, यानी कि उमस इंक्रीज होती है। और क्या होता है? और ये होता है कि जो ह्यूमिडिटी हम बोल रहे हैं, जिसके बारे में बता रही हूँ आपको, उस ह्यूमिडिटी की वजह से जो चिपचिपापन, जो स्टिकीनेस आप फील करते हो ना मॉनसून में, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस वाटर वेपर्स। तो हमें क्या पता चला इसके बारे में कि एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। और ये जो लेयर है, इसको कौन होल्ड करके रखा है? इसको ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इसको होल्ड करके रखी हुई है। और एटमॉस्फेयर क्या करता है? एटमॉस्फेयर हमें प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल सन रेज से या फिर हीट से। और एटमॉस्फेयर किससे बना होता है? एटमॉस्फेयर के अंदर होता है वाटर वेपर्स, गैसेस एंड डस्ट। Moving further, हाइड्रोस्फीयर। Now what is hydrosphere? Well, हाइड्रोस्फीयर होता है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। हाइड्रोस्फीयर, जहां पे भी आपको पानी दिखे वो पानी हाइड्रोस्फीयर ही है। यानी कि कोई भी वाटर बॉडी आपको दिख रही है, इवन अगर आप एक बकेट में पानी भर के रख रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में सारी वाटर बॉडीज आती हैं। तो एनी डोमेन ऑफ वाटर इज अ हाइड्रोस्फीयर। Yes, you got it right. And hydrosphere consists of all the water bodies that are found on the earth. इम्पॉर्टेंटली, हाइड्रोस्फीयर जितने भी बायोटिक एलिमेंट्स हैं एनवायरमेंट के, उन सब के लिए बहुत असेंशियल है। बेसिकली हमने जितने स्फीयर्स पढ़े हैं, ये तीनों हमारे बायोटिक एलिमेंट्स के लिए बहुत असेंशियल है। कैसे? क्योंकि बायोटिक एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो कैमल हो, चाहे डेजर्ट में रहता हो, ही इट कैन स्टोर वाटर बट इट कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। आई थिंक यू नो इट, राइट? तो चाहे वो कैमल हो, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, चाहे वो बर्ड्स हो, इंसेक्ट्स हो, सबको दे नीड वाटर, दे नीड लैंड एंड दे नीड atmosphere to live in. So, and all the three spheres are essential for all the biotic elements of the environment. Great. With this hydrosphere topic, I am signing off. So, I am Arima Chaturvedi, a social science teacher, and I am signing off this topic, this first video on this first class of 7th grade Unacademy channel. And do remember to hit the subscribe button. If you have not done it yet, do it like right now. Hit the subscribe button and like and share this video. Most importantly, hit the bell icon because you don't want to miss any update from Unacademy. Yes, and do remember this. This is a live school daily, and you will find all the videos according to your syllabus daily on this channel. So tune in to Unacademy to never miss an update. And before closing this whole video, let me tell you, if you have a brother or a sister or any friend that is preparing for NEET or JEE, you can also prepare. You can go to our portal, check the NEET and JEE classes, and you can learn from it. Yes, yay, Unacademy. And if you are a student of 11th standard, 12th standard, 9th or 10th standard, we also have channels for you. So go to the portal, visit the channels, see the teachers, whatever you think you need, you will get it on Unacademy. So bye bye, take care and stay safe, stay home.